Hello students, welcome back to my channel. This is your English teacher Anuradha Dubey, and today we are going to study chapter number 2 from class 11th textbook reader Hornbill. The name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, and it has been written by Gordon Cook and Alan East. Now let's see some characters in the story. The first one is narrator, who is telling the story. He is a captain. His wife Mary, his son Jonathan, his daughter Suzanne, and there are two crewmen, Larry Wiesel, who is an American, and Herb Siegler, who is a Swiss. This is the family. And now let's have some introduction of the characters, because we are going to be asked questions about these characters later. The first one is the narrator. He is a man of great courage, a 37-year-old businessman. His commitment and conviction proved to be the best captain as well as the best father, with upending gift and determination. Throughout the story, we will see that this man has immense capability to go through and play his role as captain, and at the same time he is a good father and a good family man who is trying to protect his family from impending disaster. The second character is Mary, a wife who always stood by her husband's side and all time of difficulty and considered her dreams of her own. तो ये जो वाइफ है, ये जो है एक टिपिकल वाइफ है जो अपने हस्बैंड के ड्रीम को शेयर करती है और उसके हस्बैंड को के साथ हर डिफ़िकल्टी में खड़ी रहती है. Then there is Suzanne, who is a 7-year-old girl, and she is a brave girl. Her bravery toughened her father's resolve to fight the sea's strong storm with tooth and nail. जो ये जो बच्चे हैं, स्पेशली जो लड़की है, जो हमें बाद में पता चलेगा कि कितना हर्ट होती है, इवन देन शी डजंट बॉदर टू शो हर इंजरीज टू हर फादर बिकॉज शी डजंट वॉन्ट टू ब्रेक द मोरल ऑफ हर फादर एट अ टाइम when he was trying to save their life. Then there is a 6-year-old child, Jonathan, who shows bravery and fearlessness in the face of death, highlights his character. We have got the title of this story from his statement only, जब वो कहता है we are not afraid to die if we can all be together, और उसका ये जो स्टेटमेंट है वो उसके पिता में एक नई जान फूंक देता है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है जुलाई 1976 से, जहाँ ये नरेटर जो है वो अपनी फैमिली के साथ तैयारी करता है एक राउंड द वर्ल्ड वोयाज पे जाने की. वोयाज कहते हैं सी जर्नी को, जो जर्नी जो ट्रैवलिंग जो बहुत सारे जो एक्सप्लोरर्स होते हैं वो समंदर में करते हैं, उनको वोयाज कहते हैं. इस आदमी का सपना होता है कि ये एक राउंड द वर्ल्ड वोयाज करेगा, वैसे ही जैसे सालों पहले कैप्टन जेम्स कुक ने की थी. नाउ हु इज़ कैप्टन जेम्स कुक? कैप्टन जेम्स कुक वॉज अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर, नेविगेटर and cartographer who ultimately rose to the rank of captain in the Royal Navy, क्योंकि उन्होंने दुनिया का एक चक्कर लगाया था, बल्कि उन्होंने 3 चक्कर लगाए थे, विच हैज़ बीन शोन इन दिस मैप इटसेल्फ. तो यहाँ हम जो रेड वाला जो मार्क है हम उसे देख सकते हैं कि ये वो जर्नी थी जो कैप्टन जेम्स कुक ने फर्स्ट टाइम को अंडरटेक किया था. और ये जो फैमिली है जिसकी हम प्रेजेंटली बात कर रहे हैं, इसने भी ये तैयारी की है कि उन्हें इसी यात्रा को कंप्लीट करना है. और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है. फॉर 16 years these people are preparing for honing their seafaring skills in British waters. That means जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं ब्रिटेन में, उन सब पर जाकर इन्होंने अपने जो ये सी की ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव किया है. इसके बाद उन्होंने एक प्रोफेशनली एक बोट बनवाई है जो 23 मीटर लंबी है, 30 टन वुडन हर्ल्ड ब्यूटी है ये. इसका नाम वेव वॉकर है और इसे ये तैयार करते हैं अपनी यात्रा के लिए. और सबसे पहले इन्होंने इस बोट के साथ भी बहुत प्रैक्टिस की, क्योंकि दे वांटेड टू चेक वेदर दिस शिप इज़ एबल टू फेस ऑल द डिज़ास्टर्स
all the storms or all the untoward condition they are supposed to face in the when they will be in the ओशन। जब वो समंदर में होंगे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं जो फेवरेबल ना हो, तो वो देखना चाहते थे कि उनका जो शिप है वो उन चीज़ों को झेलने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो वो अपने शिप के साथ भी बहुत प्रैक्टिस करते हैं और इस तरीके से उनकी जो जर्नी शुरू होती है, जो उन्होंने 3 साल के लिए प्लान की थी, तो वो शुरू होती है जुलाई 1976 से। दे सेल्ड फॉर जर्नी टू वर्ल्ड वोयाज। दे ट्राइड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 20 years अर्लियर बाय जेम्स कुक इन देयर प्रोफेशनली बिल्ट शिप द वेव वॉकर। द वेव वॉकर इज़ द नेम ऑफ देयर शिप। और इस तरीके से पहला लेग जो था, उन्होंने अपनी पूरी जो 3 years की जर्नी थी उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, और जो फर्स्ट लेग था जर्नी का वो बड़े आराम से पास हो जाता है। 105,000 किलोमीटर्स की जर्नी उन्होंने बहुत ही पीसफुली पार कर ली है। एंड नाउ दे हैव ट्रेवल्ड फ्रॉम वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। यहाँ तक वो पहुँच गए हैं। एंड नाउ दे आर सपोज टू एंटर द सदर्न इंडियन ओशन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द रफेस्ट सीज। सो नाउ दे हैव हायर्ड 2 crewmen फॉर प्रोफेशनल हेल्प, जिनके नाम हैं, एक अमेरिकन पर्सन है जिसका नाम लैरी विजिल है और एक स्विस पर्सन है जिसका नाम हर्व सीजलर है। तो इन दोनों लोगों को इन्होंने सदर्न इंडियन ओशन में ले जाने के लिए हायर किया। इसके बाद वो केप टाउन से निकले और दूसरा दिन भी उनका निकल गया, और उसके बाद उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स का सामना करना शुरू किया। अगले कुछ हफ्तों तक द विंड कंटिन्यूड टू ब्लो कंटिन्यूसली एंड द ऑथर वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट गेल्स। हवाएं तो चली रही थी, ऑथर को इसका कोई ज़्यादा चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग। लेकिन जो वेव का साइज था इट वॉज वेरी डेंजरस बिकॉज इट वॉज just as the height of their main mast. Mast is the basic structure of a ship, the upright structure, जो कि जिस पर पूरा का पूरा ढांचा जो है वो डिपेंड करता है किसी शिप का। तो इसकी जो वेव वॉकर का जो मेन मास्ट था ये भी 15 मीटर था, और 15 मीटर की लहरें जो हैं वो वेव वॉकर से टकरा रही थी। सो ही वॉज अ लिटिल बिट कंसर्न्ड अबाउट द साइज ऑफ द वेव्स। लेकिन टाइम कटता रहा और वो 3,500 किलोमीटर्स निकल गए केप टाउन से। बहुत ही एट्रोशियस वेदर था, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना 25 दिसंबर सेलिब्रेट किया, क्रिसमस सेलिब्रेट किया। दिन पर दिन और मौसम ख़राब होते चला गया, बट द ऑथर हैड प्रीमोनिशन दैट ऑल दिस वेदर इज़ गोइंग टू चेंज सून, और ये चेंज भी हुआ। लेकिन अच्छा होने के बजाय इट टर्न्ड इनटू वर्स, ये और ज़्यादा ख़राब हो गया। और फिर दिन आया जनवरी 2। तो ये जनवरी 2 को क्या हुआ, ये जो वेव्स थी दे टर्न्ड इनटू बीइंग जाइजेंटिक। एक बहुत ज़्यादा दैत्याकार वेव्स का सामना उनका जहाज़ जो है वो कर रहा था। एंड दे गॉट द इंटिमेशन ऑफ डिज़ास्टर एट 6 PM। और उन लहरों को का हर बार सामना करने के बाद वेव वॉकर जो था, सामने से तेज़ गति से लहरें आती थी और बहुत ऊंची ऊंची लहरें आती थी। वेव वॉकर अपने पूरे स्पीड पे जा रहा था और हर बार वो एक बड़ी सी लहर पे चढ़ जाया करता था और आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी सब के बीच में लगभग 6 बजे एक शांति हो गई, अंधेरा हो गया। इट वॉज एन ominous साइलेंस। इट वॉज विजिबल दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून, और बहुत जल्दी कुछ ख़राब होने वाला है। और अचानक से ऑथर ने रियलाइज़ किया कि वेव वॉकर के पीछे, शिप के पीछे से बहुत बड़ा सा क्लाउड उठ रहा है। एंड द frightening fact was that the thing that he was considering to be a cloud, it was a very very dangerously high wave. ऐसी वेव जो इन्होंने अब तक नहीं देखी थी। इट वॉज अबाउट ट्वाइस द साइज ऑफ द मास्ट। लगभग 30 मीटर ऊंची ये वेव थी, और इसके साथ ही ये पहले ये एकदम वर्टिकल खड़ी हुई लहर और एक बहुत बड़े क्रैशिंग साउंड के साथ ये वेव वॉकर के डेक पर
टूट पड़ी। सो देयर वॉज अ क्रैशिंग साउंड, पेनफुल शोर था चारों तरफ, एक बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ, पूरा शिप जो था वो बैडली, इट वॉज बैडली शेकन, और वेव वॉकर में हर जगह पानी ही पानी भर गया। The head of the author was smashed into the wheel and in one jerk he found himself on the other side of the cabin and he was drowning in the water. वो केबिन की दूसरी तरफ जाके पानी में गिर गया and he thought he was losing his consciousness. उसे लगा कि वो बस मरने ही वाला है और एक पीसफुलनेस उसके ऊपर आने लगी। सडनली उसे होश आया, उसने अपने सामने पानी में घिरे हुए वेव वॉकर को देखा, उसने अपनी ताकत इकट्ठी की और रेल रोड्स को पकड़ के वो केबिन की तरफ आने की कोशिश करने लगा। तभी अपोजिट डायरेक्शन से एक और वेव आई जिसने पलट के इसे पपेट की तरह वापस डेक पर डाल दिया और ये फिर से केबिन में भागा और बहुत ही बेतहाशा स्टीयर करते हुए, व्हील करते हुए वो उसको शिप को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। वो शिप जो पूरे तरीके से हॉरिजॉन्टल हो गई है अब पानी के अंदर, सब जगह पानी भरा हुआ है। इसी समय हाँ, जो ऑथर जो है वो इतना घायल है, उसके रिब्स जो हैं वो सारे के सारे टूट चुके हैं। हिज माउथ इज फिल्ड विद ब्रोकन टीथ एंड ब्लड। इसी समय इसकी वाइफ अंदर एंटर करती है और शी इज़ ऑल्सो वेरी पैनिक और वो कहती है कि देयर इज़ वाटर एवरीवेयर, आई थिंक वी आर सिंकिंग। ही ऑर्डर्स हर टू टेक द व्हील और उसको कहता है कि तुम व्हील को मैनेज करो, आई विल गो एंड चेक अदर थिंग्स, क्योंकि रिपेयर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज द शिप विल डेफिनेटली सिंक। और वो बाहर भागता है और उसकी वाइफ जो है वो स्टीयर करने लगती है। रिमेंबर द शिप वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स इट वॉज अबाउट टू सिंक इफ इट वॉज नॉट कंट्रोल, इफ द रिपेयर वर्क वॉज नॉट डन इमीडिएटली। तो ऑथर जो है वो जाके क्रूमैन के साथ लग जाता है और रिपेयर वर्क करने लगता है। क्रूमैन भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाते हैं और पानी को पंप आउट करने लगते हैं। वो पानी जो वहाँ चारों तरफ फैला हुआ था और भी जो जहाँ जहाँ नेसेसरी रिपेयर्स थी, जो बोट को डूबने से बचाने के लिए ज़रूरी थी, वो करने लगता है, क्योंकि जो साइड स्ट्रक्चर जो होता है जिसे स्टर्न कहते हैं वो पूरा टूट चुका था। जो कबर्ड्स थे जो शिप में लगे हुए थे वो भी टूट चुके थे, क्योंकि वो 3 सालों के लिए चले थे। तो बहुत सारे खिलौने, कपड़े, कबर्ड्स और टॉयज़ जो हैं वो सब चीज़ें जो हैं वो पानी में सब जगह बह रही थी और मैडमैन की तरह फ्रैंटिकली दीज क्रूमैन वर ट्राइंग टू पंप आउट द वाटर आउट ऑफ द शिप सो दैट इट कैन बी सेव्ड फ्रॉम सिंकिंग। उसके बाद ऑथर ने क्या किया, उसने जहाँ जहाँ ब्रोकन प्लैंक्स थे जिनसे पानी हर वेव के साथ पानी जो है वो उन टूटी हुई दरारों से शिप के अंदर भर रहा था। शिप के बॉटम का जो 2/3 पार्ट होता है, जो हॉलो होता है, वहाँ पर भी कई सारे डैमेजेस थे जिसकी वजह से पानी अंदर भर रहा था और ये बहुत प्रोबेबल था कि अगर इस पानी को रिपेयर नहीं निकाला गया और शिप को रिपेयर नहीं किया गया तो शिप डूब जाएगा। तो वो फिर से उन कैनवास बिछाता है और स्क्रूज और हैमर की हेल्प से उन गैप्स को रोक देता है और पानी जो है वो बाहर डिफ्लैक्ट होना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से पूरा जो दिन है वो उनका ये सब काम करते हुए गुजरता है। इसी प्रोसेस में कई और सारे प्रॉब्लम्स भी आने लगते हैं, जैसे कि उनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो डेब्रीज की वजह से, डेब्रीज वो जो टूटी फूटी चीज़ें वहाँ थी, व्हेन दे वर ट्राइंग टू पंप आउट दीज थिंग्स वर ऑल्सो जैमिंग इनटू द मशीन बिकॉज ऑफ द ब्रोकन थिंग्स। तो शॉर्ट सर्किट इनमें हो गया, इन्होंने काम करना बंद कर दिया और जब पंप ने काम करना बंद कर दिया तो फिर से वाटर लेवल जो था वो थ्रेटनिंगली बढ़ने लगा। और तभी उस ऑथर ने ये भी देखा कि उसकी बेटी जो थी शी वॉज बैडली इंजर्ड, वो बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी हुई थी, बट ही हैड नो टाइम टू वॉच एंड सी हाउ मच शी हैज़ बीन वुंडेड, और वो अपने काम में लगा रहता है। और इस तरीके से तीसरा दिन आ जाता है और ये जो जनवरी 3 आ जाता है। नाउ they are continuously trying to pump out the water with the help of spare pumps, जो कि ऑथर ने ढूंढ निकाले हैं नीचे चार्ट रूम से, और लगातार चार्ट रूम से ही is trying to
calculate and connect with the outside world. He is trying to seek help from the outside world, ताकि वो बाहर से कहीं से कनेक्शन कर सके और हेल्प मंगा सके. बट दे वर इन सच अ रिमोट एरिया दैट ही वॉज गेटिंग नो रिस्पॉन्स फॉर हिज कॉल्स. और तभी उसने देखा कि उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजरी उसको हुई है. उसके सिर के ऊपर जो है, उसकी आँखों में जो है वो स्लिट की तरह लग रहा है, वो सूज गई है. उसके आर्म्स पे भी कट हैं. लेकिन बच्ची मोटिवेट करती है अपने पिता को ये कहते हुए कि आई वॉज नॉट इंटेंडिंग टू बॉदर माई फादर एट सच अ टाइम व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू सेव अस ऑल. एंड दिस मोटिवेट्स हर फादर अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट. और वो समझता है कि उसके बच्चों को जिनको उस पर इतना विश्वास है, वो जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करेगा और शिप को बचाने की कोशिश भी करेगा. इस तरीके से 15 घंटे गुजर चुके हैं जब उन्होंने उस वेव को सरवाइव किया था. शिप ने वेव को सरवाइव किया था, लेकिन शिप की हालत इतनी ख़राब है कि वो जो नियरेस्ट कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ तक नहीं पहुँच सकते. तो यहाँ पर उसने फिर से कैलकुलेशन किया और एक अंदाज़ा लगाया कि दैट देयर आर 2 पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन near a few hundred kilometers from the place where they are now sailing. जहाँ उनका जहाज़ चल रहा है वहाँ से उसने कैलकुलेशन करने पे पाया कि कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 बहुत छोटे छोटे से ओशन आइलैंड्स हैं इस बड़े से ओशन में, जो जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं. लेकिन ये वो तब कर सकते हैं जब विंड की स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो. टू रीच द आइलैंड विच वॉज ओनली पॉसिबल इफ़ द विंड विल स्लो डाउन. तो इसकी उम्मीद जो थी कैप्टन की वो यही थी कि अगर विंड की स्पीड कम हो जाती है तो शायद वो उस आइलैंड जिसका नाम अल एम्स्टर्डम है वहाँ तक पहुँच सकता है. इसके बाद 36 आवर गुजर जाते हैं. 4 और 5 जनवरी को उनकी हालत में कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था. आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग देयर वाज ओनली फ्यू वाटर लेफ्ट. वो दोनों क्रूमैन जो लगातार कई घंटों से पानी को पंप आउट कर रहे थे और दे सक्सेसफुली मैनेज्ड टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आउट ऑफ द शिप. और केवल कुछ सेंटीमीटर पानी जो है वो नीचे रह गया था. एंड नाउ दे कैन टेक रेस्ट इन रोटेशन. तो रोटेशन में वो आराम कर सकते हैं. इतना पानी उन्होंने कंट्रोल कर दिया है. इसके बाद स्पीड को कम करने के लिए, क्योंकि जो हालत है शिप की, अगर वो बहुत तेज़ स्पीड पे चलता है और सामने से वेव भी बहुत स्पीड से आती है तो इट कैन गेट कोलिडेड एंड इट कैन टर्न इनटू अपार्ट्स. तो ये एकदम टूट के 2 टुकड़े हो सकते हैं इसके. इसलिए वो पानी की उसके जहाज़ की स्पीड को कम करने के लिए स्टॉर्म जिप डाल देता है और उन 2 आइलैंड्स की दिशा में चलने लगता है. और ये पहला दिन था 36 आवर्स के बाद जब उन्होंने कुछ थोड़े से बिस्किट्स खाए. And all the family members are trying to motivate one another because they appreciate the efforts all of them are doing in their own capacity. वो जो कुछ भी कोशिशें वो कर पा रहे हैं वो कोशिशें वो कर रहे हैं. और इसके बाद 4 बजे फिर से वही ऑमिनस साइलेंस हुई और पहले जैसे ही ब्लैक क्लाउड्स जो थे वो बढ़ने लगे जहाज़ की तरफ और बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हो रहे थे. तो अब की बार तो उनको क्लियरली पता था दैट दीज आर नॉट द क्लाउड्स, अदरवाइज दे आर द वेरी डेंजरस waves which can be proved fatal in this such a crucial situation for the ship. तो अब तो उन्हें पता ही है कि कितनी मुश्किल जो है उनको हो सकती है. तो यहाँ अब आगे क्या होता है कि वो अपने बच्चों के पास जाता है उन्हें तसल्ली देने के लिए. और बच्चे कहते हैं, वो छोटा बच्चा जो 6 साल का जो बच्चा है वो कहता है कि क्या पिताजी क्या हम मरने वाले हैं. और साथ में वो ये भी कहता है कि डैडी मैं मरने से बिल्कुल भी नहीं डरता अगर हम सब एक साथ हैं, आप, मम्मी, सू एंड मी.
वो कहता है वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, सू एंड आई, एंड इन दिस वे वी कैन सी सच अ ग्रेट मोरल ऑफ द चाइल्ड एंड हु इज ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रगल विच हिज फादर इज मेकिंग इन अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैपेसिटी। जो भी उसके बस में है वो कर रहा है, वो अपने पिता को मोटिवेट कर रहा है। ऑथर फिर से एक रेजोल्यूशन लेता है कि किसी भी तरीके से उसे इस समंदर से लड़ना है और अपनी फैमिली को और इस शिप को उसे बचाना ही बचाना है। अगेन उसके पास जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसको उसने इकट्ठा किया, जहाज़ की स्पीड को कंट्रोल किया, कुछ एंकर्स डाले, कुछ एंकर्स उसने खुद पैराफिन के बैरल से बनाए और इसके बाद वो दोनों आगे आने वाले खतरे का वेट करने लगे। बीच बीच में जाके वो चार्ट रूम में जाके कैलकुलेशन करता था और देखता था कोर्स ऑफ कि क्या रास्ते में उसको चेंजेस लेने हैं, जो हवा का जो बहाव है वो किस तरफ है, पानी का बहाव किस तरफ है, और लगातार कैलकुलेशंस कर रहा था ताकि बिना गलती के जहाज़ जो है वो उस आइलैंड पर पहुंच जाए जिसको उसने मार्क किया है, जहां जाके वो बच सकते हैं। और इस तरीके से वो 150,000 किलोमीटर्स के ओशन में एक 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड को ढूंढ रहा था। जब वो ये सब सोच ही रहा था उसी समय सूजा हुआ सिर लेके उसकी बेटी आती है और उसको एक कार्ड हैंड ओवर करती है। उस कार्ड पर उसने कैरिकेचर्स बनाए हैं अपने पेरेंट्स के और लिखती है कि उस दैट oh how I love you both, so this card is to say to thank you and let's hope for the best. And these words give a conviction to the captain that today he has to save his family at any cost. और इस तरीके से 6 जनवरी जो है वो आ जाता है। नरेटर जो है वो फिर से एक सारे कैलकुलेशंस करता है और लैरी को एक ऑर्डर करता है कि 185 डिग्रीज जो है वो तुम स्टीयर कर लो शिप को, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 5 बजे तक हमको वो शिप जो है वो मिल जाए, वो आइलैंड जो है वो मिल जाएगा। और क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसे ऑनेस्टली तो उसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं थी कि शायद वो आइलैंड जो है वो उसे मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, लेकिन वो कोशिश करना चाहता था और वो इतना थका हुआ था कि वो सो गया। और 6 बजे उसकी नींद खुली और शिप अभी भी चल रहा था। सो ही गॉट अ लिटिल बिट फ्राइटन्ड व्हेन ही सॉ द टाइम। और तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। दे वर वेरी हैप्पी एंड दे आस्क्ड फॉर अ हग फ्रॉम देयर फादर, एंड व्हेन ही आस्क्ड द रीज़न दे सेड बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट कैप्टन एज वेल। जब ऑथर कहता है कि नहीं, दिस टाइम आई डाउट इट इज़ नॉट सो, बच्चे बताते हैं ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज वी हैव फाउंड द आइलैंड, हमने वो आइलैंड को ढूंढ लिया है। और बहुत एक्साइटेड होके ऑथर जो है वो डेक पर जाता है और देखता है कि उसके सामने आइलैंड है। वो आइलैंड जो कि एक ब्लीक पीस था, वोल्केनिक रॉक्स का बना हुआ, लगभग 65 किलोमीटर के रेडियस का इसका एरिया था। कोई वेजिटेशंस यहाँ पर नहीं थी, बट बिकॉज इट वॉज गोइंग टू हार्बर दीज पीपल हु हैव जस्ट सर्वाइव्ड आउट ऑफ द माउथ ऑफ डेथ, तो उनके लिए दिस प्लेस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। दिस आइलैंड वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। और तभी जो 28 इनहैबिटेंट्स थे जो उस आइलैंड पे रहते थे, वो सारे के सारे आ गए और उनका वेलकम किया। और जब इन लोगों ने ज़मीन पर अपने पैर रखे, नरेटर ने उन सारी घटनाओं को एक बार फिर से अपने ब्रेन में रिकैपिचुलेट किया और अप्रिशिएट करने लगा उन सारे लोगों को जिन्होंने उसके इस बहुत बड़े और बहुत ही मुश्किल स्ट्रगल को सक्सेस किया था और उसे मोटिवेट किया था, और जिनकी वजह से वो इस लड़ाई को जीत पाया। जैसे उसकी वाइफ जो उन मुश्किल आवाज़ में पूरे टाइम व्हील को स्टीयर करती रही थी, उन 2 क्रू मैन के बारे में उसने सोचा जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था
और पानी पंप आउट करते रहे थे, और उसको उसके हर डिसीजन में उसके साथ खड़े रहे और उसको ट्रस्ट करते रहे, उसको कॉपरेट करते रहे विदाउट एनी क्वेश्चन और डाउट। उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा, उस बच्ची के बारे में सोचा जो इतनी सीरियसली इंजर्ड थी, जिसके बाद में 6 माइनर ऑपरेशंस हुए so that the clot can be removed from her skull and the skin। और उस छोटे से बच्चे के बारे में सोचा who was constantly motivating his father saying that he was not afraid of dying। तो इस तरीके से ये कहानी जो है वो एंड होती है, एंड दिस फैमिली सर्वाइव्ड हिमसेल्फ। अब बात आती है क्वेश्चंस की जो इस चैप्टर से बनते हैं, क्योंकि ये एक फैक्चुअल चैप्टर है तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो उन इंसिडेंट से बनेंगे जो हमने अभी पीछे चैप्टर में कवर करी हैं। तो आप जब इन इंसिडेंट्स को एक बार, इस वीडियो को एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे और उन इंसिडेंट्स को सीक्वेंस में कवर करते चलेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलना है। कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस जो जनरली बनते हैं उनको हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। The title is taken from the Jonathan's remark, "We are not afraid to die if we can all be together"। तो ये जो टाइटल है वो उस बच्चे का रिमार्क है जब वो कहता है कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम साथ हों तो। इट ब्रिंग्स आउट द ब्रेवरी, ग्रिट एंड करेज ऑफ द कैप्टन्स फैमिली एंड लव each member has for others। Suppose करिए when this man was giving his 100% and he frantically making one or the other effort with the minimum possible resources he had on the ship to save his family। अगर ये बच्चे पैनिक हो जाते, अगर ये बच्चे सेंटिमेंटल हो जाते, अगर ये बच्चे रोने धोने लगते, डरने लगते, अपने पिता को बार बार डिस्टर्ब करते डिमांड्स करके या अपना एप्रीहेंशंस दिखाते हुए, तो रिज़ल्ट क्या रहता? तो क्या उसका पिता इतनी कोशिशें कर पाता जो उसने करी? या अगर बार बार वो बच्चे ये रिमाइंड करते कि हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, तो हाउ इट कुड हैव डिमोरलाइज्ड हिज फादर। कितना ज़्यादा डिमोरलाइज हो गया होता उसका पिता। तो ये जो स्टेटमेंट, ये जो टाइटल है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट बार बार बोल के उसके बच्चों ने उसके जो एफर्ट्स जो नरेटर कर रहा था, जो कैप्टन कर रहा था, उसको बूस्टअप किया है। और ये पूरा जो उसका स्ट्रगल है विच कम्स टू एन एंड ऑन अ सक्सेसफुल नोट, ये सक्सेसफुली इसलिए हुआ बिकॉज इट वॉज positively reinforced by his family members। Next is the theme of the story। You can see number of themes parallelly working in the story। For example, human nature of knowing and taking on challenges। जैसे हम देखते हैं कि for 16 years this man was practicing in order to undertake the journey that was taken 20 years earlier by कैप्टन जेम्स कुक। एक रिकॉर्ड उसको बनाना है कि कैप्टन जेम्स कुक ने जो किया है वो मुझे भी करना है। 20 ईयर्स अर्लियर जो उन्होंने किया है वो मुझे भी करना है। इसके अंदर जो बेसिक चीज़ है वो है कि ह्यूमन नेचर है जिसे नई नई चीज़ें जानने का और चैलेंजेस लेने का शौक होता है। दूसरी चीज़ है, जो दूसरी थीम जो वर्क करती है पूरे चैप्टर में, वो है ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। जो फ्रैंटिक एफर्ट्स क्रूमैन करते हैं, मैरी जिसने शायद कभी भी उसको शिप को स्टीयर नहीं किया होगा, व्हील नहीं किया होगा, लेकिन वो स्टीयरिंग करती है, ठीक। और कैप्टन जो है जिसने ऑफ कोर्स उसने बहुत प्रैक्टिस की थी, उसने 16 इयर्स अपने सी फायरिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया था, ऑफ कोर्स उसने बहुत कुछ किया था, लेकिन एक कंसंट्रेटेड अप्रोच कि एनी हाउ आई हैव टू सर्वाइव दिस डिज़ास्टर, ये जो अप्रोच है ये इंसान की उस बेसिक इंस्टिंक्ट से आती है कि कितना भी बड़ा ख़तरा सामने क्यों ना आ जाए, इंसान अपनी आखिरी कोशिश करता ही करता है। ये यहाँ पर भी काम करती है। इसके अलावा है ह्यूमन ब्रेवरी, ग्रिट, करेज, यूनिटी
and determination which in this story is exhibited even by small children. This is also very important. इंसान bravery दिखाता है, वो bravery जो इस आदमी ने दिखाई जब ये पहली बार स्टीयरिंग व्हील से टकरा के बाहर पानी में गिरा था और बेहोश हो रहा था. ही फेल्ट एज इफ ही वॉज गोइंग टू डाई. हिज रिब्स वर क्रैक्ड, हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्रोकन टीथ्स एंड ब्लड. उसको लगा वो मरने वाला है. उस टाइम से लेके लगातार वो अपने आप को संभालता है. पानी में वापस वो डेक पे आता है और फिर से वो हज़ारों कोशिशें करता है. जितने भी चीज़ें, सारी चीज़ें वो यूज़ कर लेता है. ज़्यादातर चीज़ें बर्बाद हो जाती हैं, पंप ख़राब हो जाता है. वो एक जुगाड़ करके काम करता है ना. और पैराफिन के कैंस से वो एंकर बनाता है, नायलॉन रोप से वो एंकर बनाता है. कैनवास को बिछा बिछा के वो स्क्रू और हैमर से उसको बंद करता है ताकि जो ब्रोकन प्लैंक से पानी जो है अंदर आना बंद हो जाए. ये जो सारा काम है ये दिखाता है कि वो कितना बहादुर है, वो कितना ग्रिटफुल है. ये ग्रिट एक जिद की नहीं मुझे तो ये करना ही करना है, हिम्मत बनाए रखना. यूनिटी. All of the members who were on the ship were working in perfect coordination. कोई व्हील कर रहा है, कोई चार्ट रूम में काम कर रहा है, कोई पंप आउट कर रहा है पानी को. बच्चे जो हैं वो कुछ और फिजिकल एफर्ट नहीं कर सकते, तो मेंटली एंड इमोशनली दे आर ट्राइंग टू बूस्ट अप द मोरल ऑफ देयर पेरेंट्स. तो इस तरीके से हर आदमी जो है वो अपने हिस्से का काम वहाँ पे कर रहा है. इसके बाद है एलिमेंट ऑफ लक. ये लक भी एक कहीं ना कहीं काम करता है. वो अलग बात है कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो एक्ट करते हैं. तो यहाँ पर ऑथर ने ऑब्वियसली बहुत सारे पेन लिए हैं, बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं, एंड हिज एफर्ट्स आर ब्यूटिफुली कंबाइंड विद दैट ऑफ लक. और लक भी उसको मिलता है और लक उसका साथ देता है, और जिसकी वजह से वो बाई चांस की ही बात है कि इतने बड़े 150,000 किलोमीटर के एरिए में, उस बड़े से समंदर में उसको सुई की नोक के बराबर के 2 आइलैंड्स मिल जाते हैं जिनका कैलकुलेशन वो कर लेता है और सक्सेसफुली शिप जो है वो वहाँ तक पहुँच भी जाता है. तो ये एक फैक्ट ऑफ लक भी जो है वो काम करता है. देन इट इज़ फेथ इन वंस ऑप्टिमिज्म, क्योंकि ये भी इन सारे थीम के एलिमेंट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, दे कैन बी आस्क्ड इन योर questions. तो faith in one's optimism, not despairing hope even in difficult circumstances and sharp presence of mind. यहाँ optimism जो है वो एक बहुत ही डायरेक्टिंग फोर्स है जिसने इस स्टोरी में एक ऐसे एलिमेंट के रूप में काम किया है. जो सारे एफर्ट्स जो थे वो फ्रूटफुल हो रहे थे, वो इसलिए हो रहे थे बिकॉज द ऑथर वॉज ऑप्टिमिस्टिक इन एवरी कंडीशन. Even the crewman, they didn't ask, they were very professional, but even then they didn't ask even a single question about the decision taken by the captain. कुछ भी क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, कोई डाउट नहीं किया, और ड्यूटीफुली वो सारे ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहे, अपना काम करते रहे. और दे वर वेरी चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक. इवन द चिल्ड्रन वर वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हर बच्चा जो, हर इंसान जो था वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक था कि एनी हाउ दे आर गोइंग टू मेक इट, कि कहीं ना कहीं वो ये जर्नी जो है वो कंप्लीट कर ही लेंगे. किसी ना किसी तरीके से वो शिप जो है वो उसे वो किनारे तक ले ही आएगा. किसी ना किसी तरीके से वो इस शिप को और अपनी फैमिली को बचा ही लेगा. Instrumental qualities of a captain which proved journey successful even after strong hurdles. इतनी मुसीबतें आने के बावजूद भी it was the competency of the captain, it was the capability of the captain जिसने उसके सारे efforts जो थे they were going into right direction. वहाँ अवेलेबल चीज़ों को नुकसान हो जाने के बाद, डेक टूट गया है, स्टर्न टूट गया है, पंप खराब हो गए हैं, चार्ट रूम में सारी चीज़ें, कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा है, कैलकुलेशंस एग्जैक्ट नहीं हो रहे हैं, ऑथेंटिक नहीं हो रहे हैं, इवन देन ही इज़ सक्सेसफुली मेकिंग डिडक्शंस अबाउट द पोजीशन ऑफ द आइलैंड. जो टूटी फूटी चीज़ें बची हुई हैं उनको जोड़ तोड़ के वो चीज़ें बना रहा है और शिप को
थ्राइव कर रहा है, उसको सस्टेन कर रहा है, ये सारी चीज़ें कैप्टन की कॉम्पिटेंसी को ही बताती हैं। और वो इतना कॉम्पिटेंट है जिसकी वजह से भी शिप को बचाने में वो सफल रहा। सो दैट वाज एंड विद दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।